My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों में आप में से हर एक को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करती हूँ। Today is December 30th. आज 30 दिसंबर है। One more day to go. बस एक और दिन बाकी है। We are in the end of this year. हम इस वर्ष के अंत में आ पहुंचे। You may be thinking, so many worries, so many heartbroken things have happened. शायद सोच रहे होंगे कि बहुत सी चिंताएं, दिल तोड़ने वाली बहुत सी घटनाएं हुई हैं। Today we are going to meditate a beautiful verse. लेकिन आज हम इस सुंदर वचन पर मनन करें। Psalm 147:3 says, God heals the broken-hearted and binds up their wounds. भजन संहिता 147 वचन 3 कहता है, परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। My friend, we are the last days and are you broken-hearted? मेरे दोस्तों, हम तो बिल्कुल अंतिम दिनों में हैं और क्या आपका हृदय टूटा हुआ है? This message is for you. तो ये संदेश आपके लिए है। God is here to bring you out of all your broken-hearted state. और परमेश्वर यहाँ पर है कि आपके सारे टूटे हुए हृदय की जो दशा है उसमें से आपको बाहर निकाले। God wants you to come out of all the problems you are facing. परमेश्वर चाहते हैं कि आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनमें से आप बाहर आएं। Check up your life. अपने जीवन को जांचिए। Do you have a close walk with the Lord? क्या आप प्रभु के साथ बहुत ही निकटता में? Are you relying upon Him for everything? क्या आप हर एक बात के लिए उस पर आधारित हैं? If you read Joshua chapter 24 verses 22 and 23, अगर आप यहोशू अध्याय 24 वचन 22 और 23, so Joshua said to the people, you are witnesses against yourselves that you have chosen the Lord for yourselves to serve Him, and they said, we are witnesses. और यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली। Are you a witness for the Lord, my friend? उन्होंने कहा, हाँ हम साक्षी है। क्या आप प्रभु की? Are you believing completely 100% that the Lord will help you to come out of all your problems? क्या आप पूरी तरह से 100% विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी समस्याओं से निकलने के लिए आपकी मदद करेंगे? The word of God says, if you believe, you shall see the glory of God. परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे। The Lord Jesus Himself told that verse. स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन कहा, If you believe, you shall see the glory of God. यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखने पाओगे। The mother of prophet Samuel, Hannah, had no children. शमूएल जो भविष्यवक्ता था, उसकी माँ हन्ना, उसे कोई संतान नहीं थी, But her co-sister had many children. लेकिन उसकी जो सौतन थी उसके बहुत से बच्चे थे। So as usual, she was criticizing Hannah. और वो हमेशा की तरह हन्ना पर दोष लगाती थी। Hannah was suffering like anything. हन्ना वहाँ पर बड़ी दुख उठा रही, She cried and cried. वो पुकार उठी, Her heart was broken. उसका हृदय टूट चुका। Then she did one thing. और फिर उसने एक बात कही, Went to the presence of God. वो परमेश्वर के उपस्थित Knelt down before the Lord. परमेश्वर के सामने घुट Poured out all her agony before the Lord. अपनी सारी पीड़ा प्रभु के सामने उंडी। To cut the story short, she cried out to the कहानी Lord. को संक्षिप्त में बताऊं कि वो परमेश्वर के सामने रोने God लगी heard her cry. और प्रभु ने उसकी पुकार सुनी। Gave her not only one child but many children, especially the blessed child, Prophet Samuel. उसने एक संतान नहीं दी, लेकिन बहुत सी संतान दी और खास करके धन्य संतान। In the same way, इसी तरह से right now, अभी समय all your heartbroken state will be gone forever. आपके जो हृदय का जो टूटना है वो हमेशा के लिए दूर हो Do जाएगा। you believe क्या that? आप ये विश्वास Do करते you हैं? believe that? क्या आप विश्वास करते Come, हैं? let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Humble yourself before the अपने Lord. आप को प्रभु के सामने नम्र करें। When once I had a problem in my life, जब मेरे जीवन में एक बार समस्या थी, I knelt down and cried unto the Lord. मैंने घुटने टेक कर प्रभु को God पुकारा। heard my cry and helped me to come out of that प्रभु ने problem. मेरी पुकार सुनी और समस्या से बाहर निकलने में मेरी In मदद the same way, की। इसी तरह से being in the last bit of this year, जैसे कि हम इस साल के बिल्कुल आखिरी भाग, let us kneel down. आइए हम घुटने टेके। My friends, kneel down. मेरे दोस्तों घुटने टेकिए, Kneel down. घुटने टेकिए, Humble yourself before the Lord. प्रभु के सामने खुद को नम्र करें, Raise up your hands. हाथ उठाएं Cry unto the Lord. और प्रभु को पुकारें। Pour out all your agony before the Lord. अपना सारा दुख प्रभु के सामने, We are going to see a miracle. और आप चमत्कार देखने पाएंगे। Hallelujah. 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 The miracle is coming. आपका चमत्कार आ रहा है। Expect a miracle. चमत्कार की अपेक्षा Miracle कीजिए। worker is here. चमत्कार करने वाले Will यहाँ पर supply all your needs. जो आपकी हर जरूरत Shall पूरी we करे। pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, thank you, Lord, for your wonderful presence. पिता, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Children may be crying, आपके संतान आपको but you पुकार are रही the है, God who can change all the
cries into laughter. आप ऐसे परमेश्वर है जो सारी रोने की पुकार को हंसी में बदल सकते Give हैं। them all that they need right now. इन्हें जो भी चाहिए अभी इस समय में God shall दीजिए। supply all your needs. परमेश्वर आप इनकी हर एक जरूरत Fulfill पूरी your करें, promise. अपनी प्रतिज्ञा पूरी And कीजिए, bless your children. अपनी संतानों को In आशीष दीजिए। Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। Amen. आमीन। यीशु बुलाता है कि नए वर्ष की आशीष सभा। We are going to pray for you that 2025 will be a year of great blessing. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि 2025 ये साल आपके लिए बड़े आशीष का साल हो। We will be sharing God's promise and God's prophetical plans for you, for the nation in 2025 in person in this meeting. और इस सभा में हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का इस साल के लिए प्रतिज्ञा वचन और आपके लिए क्या वचन है परमेश्वर का, इस सारी बातों को हम व्यक्तिगत रूप में इस सभा में बताएंगे। इस मीटिंग में गवाही देने के लिए आई हूँ। ब्रदर ने पदमा नाम लेके बुलाया, मेरे लिए प्रार्थना किया है। हमारा कपड़ा का दुकान है और उस दिन दीपावली है और पहला दिन एक भी धंधा नहीं हुआ। यीशु बुलाता में प्रार्थना करिए और तुरंत पिछले साल से इस साल में दुगना मुझे आशीष मिला है, ताकि नया वर्ष 2025 को परमेश्वर के आशीष के साथ शुरू किया जा सके। वर्ष 2025 के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, डॉक्टर पॉल दिनकरन आपके साथ साझा करेंगे और उनका परिवार नए वर्ष के आशीष सभा में संदेश देंगे और प्रार्थना करेंगे। 5 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। स्थान होगा सेंट जॉर्ज स्कूल ग्राउंड, पूनमल्ली हाईवे, पच्चापन कॉलेज मेट्रो स्टेशन, चेन्नई। Let the sorrows of the past years go. और पिछले साल के सारे दुख चले जाएं Let all the miracles that you need be given to you. और आपको जो भी चमत्कार चाहिए वो आपको दिया जाए। Let 2025 be a year of blessing for you as we pray together in this meeting. और जैसे कि इस सभा में हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, 2025 आपके लिए आशीष का साल हो जाए। This meeting will not be telecast live. और ये सभा जो है ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होगी, So come in person to get blessed. इसलिए आशीष पाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप में आए।